Welcome, Virgo people, to my love reading. It's a love reading based on your love life, on your love relationship. It's for married couples as well as for unmarried couples. You can watch it as a sun sign, moon sign, ascendant or rising sign, and Venus sign, since Venus is the goddess of love, planet of love. So, hence, it's given importance in this reading. Okay, so this side will be yours. It could be that this side will match with your reading, that is Virgo people, and this side could be your partners, or vice versa. Just flip the energies. Take what resonates to your own love life, okay? So, this side could be your partners, and this side could be your Virgo people. So, take it as it resonates with your love life because you must be knowing your love life better than me. I'll just do the reading, and whatever guidances will come in the form of universal guidance, angelic guidance, I'll pass on the message to you. I'll convey the message to you. So let's start with your reading. I'll be using 4 oracle decks: Lovers Oracle deck, Romance Angels Oracle deck, True Emotions Oracle deck, and Fairies Oracle deck. Okay, so this will be a combined reading for both you, Virgo people, and your partner. So take it as it resonates. Universe, please guide the Virgo people and their partners in their love life. Please guide the Virgo people and their partners in their respective love lives. Let them know what they need to know. Please let them know what they need to know. Okay. Virgo people, let's start with your reading. The first card says power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. If you feel unloved in your love relationship, you have the power. You can walk away anytime. This is what is being said in this card. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. If you feel something wrong in your love life, definitely first try to mend it instead of walking out or walking away anytime. That option is always there, isn't it? ये option है, लेकिन उससे पहले इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए अपने लव लाइफ को. Try to mend it, isn't it, Virgo people? That should be the first option. Try to mend it. Let's see what the angel has in store for you. Deception. This is the card of deception, my dear. Someone is wearing a false self mask in this relationship. This is what is being guided by the angels. Virgo people, it could be you, it could be your partner. So, if you feel so, that is why it's being said, you can walk away anytime because you have the power. If you instinctively feel that your partner is cheating on you, it could be you or it could be your partner. ये किसी के साथ भी हो सकता है. अगर Virgo people आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका पार्टनर भी कर सकता है. He or she has the right to do that. But I would suggest in your love life, please try to mend it first. इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए. वॉक अवे तो ऑप्शन है ही, यू कैन ऑलवेज चूज़ फॉर दैट ऑप्शन, लेकिन उससे पहले इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए. अगर ठीक ना हो पाए
then you can choose the second option, that is the option of walking away or walking out from this relationship. Okay, so moving on to the second card. This card says the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अगर कोई वर्गोस, आप में से कोई वर्गोस, अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुके, कट ऑफ हो चुके रिलेशनशिप से, तो यहाँ पे ये कार्ड फिर आपके लिए है. द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू. You have left the past behind. Okay? Release it and embrace new possibilities. Don't hold on to your past. You should never hold on to your past. Release it, let go कीजिए, release कीजिए और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को जो सामने आ रहा है, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सामने है, उसे एम्ब्रेस कीजिए. उस न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि पास्ट रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे, तभी तो सामने जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे एम्ब्रेस कर पाएंगे, है ना. नहीं तो रास्ता तो ब्लॉक्ड रह जाएगा. रास्ता खोलना चाहिए आपको. रास्ता खुलेगा न्यू पॉसिबिलिटीज़ का, तभी तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी. आप दरवाज़ा अगर बंद करके रखेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा ये. इज़न्ट इट? सोचिए इस बारे में. A new path is now available to you. Follow it with faith and trust. उस न्यू पाथ पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, उस अननोन पाथ पे विश्वास कीजिए. इंसान डर जाता है अननोन पाथ पे चलने के लिए. जो रिलेशनशिप नहीं चल रहा है और आगे उसमें ही रह जाता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने से डरता है, या फिर किसी चेंजेस लाने से अपने लव लाइफ में डरता है कि पता नहीं अननोन पाथ कैसा होगा. सो भरोसा कीजिए अपने अननोन पाथ पे. दरवाज़ा खोलिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, फॉर द फ्यूचर. ओपन द डोर फॉर द फ्यूचर. रिलीज योर पास्ट एंड ओपन द डोर फॉर द फ्यूचर. द एंजल हैज़ टू से, this is the card. The angel is saying, children, your love life is being affected by children. अगर ऐसा है वर्गो पीपल, किसी वर्गोस के साथ ऐसा हो सकता है. सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, ये हर वर्गोस के साथ स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. ये वर्गो टू वर्गो वेरी करेगा. दैट इज़ व्हाट इज़ नेचुरल, यू नो. सब वर्गोस का लव स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. ये वेरी करेगा फ्रॉम वर्गो टू वर्गो. सो किसी वर्गो के लिए ये हो सकता है. चिल्ड्रन के वजह से आपका लव लाइफ अफेक्टेड हो रहा है. यू नो, हस्बैंड वाइफ, स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स, एक दूसरे को टाइम दीजिए. हस्बैंड वाइफ अपने आप को, एक दूसरे को, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए. मी टाइम निकालिए. खुद खुश रहिए, अपने पार्टनर को खुश रखिए. खुद खुश अगर नहीं रहेंगे तो अपने पार्टनर को भला कैसे खुश रखेंगे, है ना. तो बच्चों को भी टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए. ये बैलेंस मेंटेन कीजिए. यू नो, डगमग जो कर रहा है, ये बैलेंस मेंटेन कीजिए, तभी पॉसिबल होगा. आपका लव लाइफ ब्लिसफुल तभी पॉसिबल होगा. पीसफुल हैप्पीनेस तभी पॉसिबल होगा. Isn't it? Moving on to the third card, it says, Virgo people, it says about secret admirer. हो सकता है Virgo people, you are admiring someone secretly, or someone else could be admiring you secretly. Either way, it could be possible. So someone has deeper feelings for you than they are letting on. वो बता नहीं रहा है, बयान नहीं कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपको चाहती है, आपको एडमायर करती है दूर से, फ्रॉम अफार. कुछ वर्गोस के लिए ये सिचुएशन हो सकता है. हाईली पॉसिबल. ये आप भी हो सकते हैं. द एंजल्स आर गाइडिंग, वर्थ वेटिंग फॉर. द एंजल्स, रोमांस एंजल्स आर गाइडिंग, वर्थ वेटिंग फॉर. Divine timing is at work in your love life. See, अगर आप एडमायर कर रहे हैं किसी को दूर से, तो
आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका। अब सामने जाके बयां कर दीजिए अपनी फीलिंग्स के बारे में, एक्सप्रेस कीजिए अपने फीलिंग्स को, बोल दीजिए सामने वाले को जिसे आप पसंद करते हैं। दिल में छुपा के दबा के मत रखिए अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। सामने जाइए, जाके बयां कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने लव लाइफ को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। Divine timing is at work in your love life. The divine is with you, my dear. So don't you worry. Just go ahead and express your feelings to the one you love. Moving on to this side, Virgo people, let's see what's in store for you. Time. You're trying too hard. Give it some time. You are trying too hard. Give it time. कभी कभी होता है ना, इंसान बहुत मेहनत करता है लव लाइफ में भी। लाइफ में हर एक सिचुएशन में इंसान मेहनत करता है, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए करके। तो हो सकता है आपके लव लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया हो। सो गिव इट सम टाइम, take some time, give it some time. Maybe you're trying too hard, my dear. ऐसा करने से लव आपको नहीं मिलेगा। Be easy, be relaxed, be easy on yourself. Give it some time. लव खुद ब खुद आ जाएगा। जब आना होगा आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो लव शायद नहीं आएगा, नहीं मिलेगा आपको। Because universe does not work that way. The universal laws don't work that way. So give it some time. The romance angels are saying, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. जो आप कर सकते हैं, आप प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने सोलमेट से मिले हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट इसीलिए कहा जा रहा है। शायद वही आप चाह रहे हैं, किसी सोलमेट को आप चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए, आपके जीवन में कोई सोलमेट आए। लेकिन इतना हार्ड मत होइए, प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए, उसके द्वारा मैनिफेस्ट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर वीडियो है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर वीडियो है। प्लीज़ उसे रेफ़र कीजिए और नॉलेज बढ़ाइए अपना कि कैसे मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है, कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन किया जा सकता है, कैसे थॉट से हम लोग रियलिटी में उसे ला सकते हैं। इट कुड बी दैट यू आर ट्राइंग हार्ड in a very different way or in a very difficult way. That is why maybe it's not manifesting in your life. So सही तरीके को जानिए, सही जो तरीका है उसे अपनाइए, उसे फॉलो कीजिए। प्लीज़ रेफर टू माई वीडियोज़ प्रेजेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। Okay, moving on to the next card, Virgo people. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. यहाँ पे भी देखिए टाइम के बारे में बोला गया है। Can you see the relation between these two cards? Take a step back. Don't try too hard to get someone in your life, in your love life. Don't try too hard. ऐसे ट्राई करने से नहीं होता है। लव को स्पेस दीजिए, मौका दीजिए, सब्र कीजिए। बी पेशेंट, बी पेशेंट माय डियर। It is important right now to step back
एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने काम में इन्वॉल्व रहिए, अपना फोकस अपने काम में डालिए, इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट समवन, आई वॉन्ट समवन, आई वॉन्ट समवन इन माई लव लाइफ, आई नीड अ सोलमेट, आई नीड अ सोलमेट। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर या फिर सोलमेट। गिव टाइम टू योर सेल्फ, स्पेंड सम टाइम अलोन। अपने काम में मस्त रहिए, मगन रहिए। जिसको आना होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा, आपके लाइफ में एंटर करेगा या करेगी। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव इट टू योर सेल्फ। Let's see what the angel has in store for you. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. See, यहाँ पे भी past की बात आई थी. The past is now behind you. हो सकता है कुछ वर्गोस के लिए रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। यहाँ पे भी बात आई थी, पावर वाला जो कार्ड आया था, यहाँ पे भी बोला गया है कि यू कैन से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम, बट उसके पहले अपने रिलेशनशिप को मेंड करने का सोचिए, ठीक करने के बारे में सोचिए। जुदा तो आप कभी भी हो सकते हैं, सेपरेशन कभी भी हो सकता है, कट ऑफ कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले मेंड करने का सोचिए, उसे ठीक करने का सोचिए, रिपेयर करने का सोचिए। रिपेयर के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद भी अगर ना हो, तब जाके ये स्टेप लीजिए। इसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है रिपेयरिंग के लिए, उसी का ये पॉइंट्स है। लर्न टू फॉरगिव। अगर आपने कुछ गलती किया है या फिर आपके पार्टनर ने कुछ गलती किया है, तो दोनों को ही फॉरगिव करना चाहिए, पहले खुद को फिर दूसरे को। सामने वाले को फॉरगिव कीजिए, अपने पार्टनर को फॉरगिव कीजिए। लर्न टू फॉरगिव एंड रिलीज योर पास्ट। दैट इज़ हाउ यू कैन रिलीज योर पास्ट मिस्टेक्स। You can heal your past. That's how. Are you getting my point, Virgo people? As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तब शायद आप अपना लव लाइफ हील कर पाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे, जैसा यहाँ पे कहा गया है। रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट को, हील कीजिए अपने पास्ट को, और पॉजिटिव थॉट्स लेके अपने लव लाइफ में आगे बढ़िए। जो वर्गोस ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, आप प्लीज़ ऐसा स्टेप्स लें अपने लव लाइफ में। लर्न टू फॉरगिव, हील योर पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड, improve yourself as a human being, as a person, improve your love life. खुद ब खुद आपका लव लाइफ फिर इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो। दिस इज मेंट फॉर बोथ यू एंड योर पार्टनर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. यहाँ पे भी let go करने की बात आई है, resentment को। अगर गुस्सा है आप किसी बात से, किसी भी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न्स आए हैं उठ के यहाँ पे, तो अपने पास्ट को प्लीज़ let go कीजिए, हील कीजिए। अगर ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहा है तो उसे कंट्रोल कीजिए। लर्न हाउ टू टैकल योर एंगर, लर्न हाउ टू टैकल योर ओवरवेलमिंग इमोशंस, बिकॉज इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। मेंटल फॉग क्रिएट करता है, मेंटल क्लाउड्स क्रिएट करता है, समझ में नहीं आता है, बैलेंस खो बैठते हैं हम लोग, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत रास्ते पे चल देते हैं। होता है ना ऐसा? तो टेक अ स्टेप बैक। यहाँ पे भी इसलिए कहा गया है, देखिए,
Take a step back, give some time to yourself, spend some time with yourself, meditate, spend some alone time, have a quality me time with yourself. Me time होना लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है. अपने आप को वक्त दीजिए, एनालाइज कीजिए गलती कहाँ हुआ है, उसे सुधारिए, सोचिए इस बारे में. इमोशंस को लेके हावी मत हो जाइए या फिर इमोशंस के द्वारा हावी मत हो जाइए, अपने आप पे या फिर अपने पार्टनर पे, क्योंकि इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस ऐसा कर देता है हम लोग को. सो डिटैच होइए, अपने आप को अपने ओवरवेलमिंग इमोशन से डिटैच कीजिए, अलूफ कीजिए, दूर से देखिए चीज़ को, तब जाके आपको समझ में आएगा सही मायने. नज़दीक जाके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पिक्चर डिस्टॉर्टेड लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा कुछ, आपको मेंटल फॉग क्रिएट होगा. पीछे आइए, स्टेप बैक, यहाँ पे भी कहा गया, टेक अ स्टेप बैक, दूर से देखिए उस पिक्चर को, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वाकई में क्या है, क्या चल रहा है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है. आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ क्लियर समझ में आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, Virgo people? So, in order to see things clearly, you must let go of any resentment. Moving on to the angelic guidance card, it says finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. It means some financial conditions or financial issues, monetary issues are affecting your love life. It's affecting your love life. It could be your professional reason, it could be your financial reason, some monetary issues. That is what being said in this card. Financial issues are a factor in your love life right now. हो सकता है कुछ वर्गोस के जीवन में इसके लिए प्रॉब्लम्स आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा. टाइम दीजिए, हड़बड़ मत कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने सोच को टाइम दीजिए, अपने सोच को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब बारे में सोचिए, एकांत में बैठिए, मी टाइम दीजिए अपने आप को, इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में सोचिए. सोचेंगे तभी तो पॉसिबल होगा, अगर सोचेंगे ही नहीं तो फिर एक्शन कैसे लेंगे, isn't it? So, this is what is being said to you in the form of guidance, universal guidance and angelic guidance. Now, I'll be moving on to the True Emotion Oracle deck. Universe, please guide the Virgo people. Let them know what they need to know. Please guide them. Please guide the Virgo people and their partners in their respective love life. I'll pick up one card from this deck. These are all oracle cards. Okay, it says, see, it says, I know I messed up our relationship. It says, I know I messed up our relationship. जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, हो सकता है आपको एहसास हुआ है या फिर हो सकता है ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है. Virgo people, it could be you or it could be your partner who is now realizing that I know I messed up our relationship. Let's see what the fairies' guidance is.
Universe, please guide the Virgo people and their partners. Please help them bring some positive changes in their love life. Please help them bring some positive changes in their love life. Please help the Virgo people and their partner in their respective lives. Solitude. Solitude. Think of being alone as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. मैंने कहा था ना, अपने आप को टाइम दीजिए. मी टाइम बहुत ज़रूरी है. See, even this card says so. Solitude. एकांत में जाइए, एकांत में बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे ये सब जो मेस क्रिएट हुआ है आपके लव लाइफ में. समझ रहे आप? हील कीजिए अपने पास्ट को. टेक अ स्टेप बैक. इफ़ नेसेसरी टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम योर ड्यूटीज़, रेगुलर ड्यूटीज़, फ्रॉम योर रेगुलर प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि फाइनेंसिस का भी यहाँ पे इश्यूज़ आया था. अपने अपने लव लाइफ को बचाइए. फाइनेंसिस, प्रोफेशनल लाइफ भी ज़रूरी है, फाइनेंस, लव लाइफ भी ज़रूरी है. प्यार किए हैं तो उसे बचाइए, अपने प्यार को बचाइए. सो थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल अलोन एंड इन टोटल हार्मनी विथ एवरीथिंग. द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज that wait silently during your quiet times. मन को शांत कीजिए, खुद शांत होइए. दिमाग ही तो सब कुछ है. दिमाग शांत है तो इंसान शांत है. दिमाग अगर चंचल है तो इंसान भी चंचल है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो अपने दिमाग को शांत कीजिए, तब अंदर से इनर गाइडेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड तक आके पहुंचेगा. आपको गाइड करेगा कि क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए. आपको सब समझ में आ जाएगा. लेकिन मन में, दिल में, दिमाग में स्पेशली अगर शोर रहे तो कुछ समझ में नहीं आता है. यही यहाँ पे आया है. देखिए, सी इन दिस कार्ड ऑल्सो. ओवरवेलमिंग इमोशंस. कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको. पूरा मेंटल फॉग क्रिएटेड रहेगा आपके दिमाग के अंदर. आपको समझ में ही नहीं आएगा सिचुएशन. स्टेप बैक कीजिए, एकांत में समय बिताइए, सोचिए, एनालाइज कीजिए अपने थॉट्स को, अपने रिलेशनशिप को एनालाइज कीजिए. आपको सब आंसर्स मिल जाएगा. सब आंसर्स आपको मिल जाएगा. तब शांत होंगे. धीरे धीरे इनर गाइडेंस, इनर वॉइस जो हम लोग के अंदर हमेशा रहता है, हम लोग सुन नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग के दिमाग के अंदर शोर रहता है बहुत. इसीलिए हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देता है. सिर्फ बाहर का आवाज़ ही सुनाई देता है. सो दिमाग को ठंडा कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, गुस्से को छोड़िए. जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है उसे सब हटाइए, उससे कट ऑफ कीजिए और अपने लव लाइफ को बचाइए. रिलेशनशिप को कट ऑफ करने के बजाय अपने नेगेटिव जो फैक्टर्स है एटीट्यूड्स में, नेचर में, उसको कट ऑफ कीजिए. You have that power. You have that power within yourself, my dear. So, I wish you all the very best for your love life, Virgo people, to both you and your partner, to the cross checkers also. So, have a great love life. Wish you all the very best. See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye.